Hello dear students. Now I am going to start objective of business. So yes, there's four main objectives of business. First is economic objective, social objective, human objective and national objective. So in any organization main objective किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दैट इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज to provide a service to the society. So both objectives are very main objective of any organization. First is profit earning and second is to provide better service to the society. So here first of all economic objective. So business mainly is an economic activity, so its objective are also economic. Following are the major economic objective of business are: first is to earn प्रॉफिट. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करती है तो मेन पॉइंट क्या आता है, दैट इज़ अर्न प्रॉफिट. क्योंकि कोई जो भी बिजनेसमैन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. सो business activities are generally conducted to earn profit. Mostly business is defined with the same viewpoint. No business can be successfully run without obtaining profit. आखिर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, इट मीन्स द कंपनी विल बी फेल. तो कंपनी को सक्सेस करने के लिए प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ करेक्ट दैट अर्निंग प्रॉफिट इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट profit is very important to maintain the productive capacity of resources of business and performing economic activities. अगर हम if we talk about कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट नहीं है या प्रॉफिट अर्निंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आखिर हम बात करें कि हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी इनको इंक्रीज़ करनी है या हमारे अदर रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना है, तो इन उस पॉइंट्स में प्रॉफिट का अर्न होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. So earning profit is an inspiration, need and objective of a business. No business is conducted for self satisfaction. तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन की यहाँ पे बात नहीं आती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके साथ एम्प्लॉयज़ भी ऐड ऑन होंगे, तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करना, उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देना, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस ऑल इज़ डन इफ द कंपनी आर getting more and more profit. Second is creation of customers. So the second objective of in economic objective is creation of customers. Customers को बनाना. So creation of customers is an important objective of business. Customer is the foundation of a business and he is the one who keeps a business alive. अगर customers नहीं हैं तो कोई भी organization जिंदा नहीं रह सकती. So creation of customer refers to searching for new customers in a new sectors, increasing the demand of good by discovering new uses for it, introducing new product in the market and attracting the customer of competitor by providing best quality economic product to them, increasing the satisfaction of customer and inspiring to purchase the product through advertisement. So nowadays advertisement is very important part of any organization, because we all know, even if हम सभी एक कस्टमर हैं, तो हम किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उसका नॉलेज कहाँ से मिलता है, दैन थ्रू द एडवर्टीजमेंट. सो फर्स्ट इज़ द एडवर्टीजमेंट जो हम प्रोडक्ट लेते हैं. सेकेंड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी. तो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अब कंपटीशन फेस कर रही है. तो मेन मोटिव क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, टू अट्रैक्ट द कस्टमर. दे प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज़, दे प्रोवाइड गुड प्रोडक्ट एंड डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट इन अ मिनिमम प्राइस. बिकॉज आज कस्टमर कहाँ जाएगा, जहाँ पे प्राइस उन्हें नॉमिनल मिलेगा. सो नॉमिनल प्राइस में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड that is very important for any organization. So this point comes in a creation of customers. Third is innovation. Innovation refers to the discovering new method of production in order to make the products more useful and economical and making improvement in them. So innovation means new creativity. Innovate करना means किसी नई चीज़ को खोजना. So nowadays new methods of production, this is a part of a innovation. तो लाइक न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू मशीन्स हम यूज़ कर सकते हैं.
So these all is a part of a innovation. Then in this we include the process of production, improvement in the type of design, etc. of the product, discovering new uses for old product, fulfilling the needs of the customer in the best possible manners, searching for new market, फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन. तो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना एज वेल एज न्यू डिज़ाइंस, न्यू पैटर्न्स लेकर आना ताकि कस्टमर न्यू डिज़ाइन एंड न्यू पैटर्न से अट्रैक्ट हो. देन न्यू जो भी ओल्ड प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज करना, उसे कन्वर्ट करना न्यू प्रोडक्ट में. देन जो भी कस्टमर्स की नीड्स हैं उसको ईजिली फुलफिल करना इन अ पॉसिबल मैनर एंड सर्च इज न्यू मार्केट. किसी न्यू मार्केट में सर्च करना, न्यू मार्केट को सर्च करना जहाँ पे प्रोडक्ट ईजिली सेल आउट हो सके. सो दीज ऑल इज़ अ पॉइंट इन कवर इन अ इनोवेशन. तो हमेशा एक बिजनेसमैन को या एक ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव होना इट इज़ वेरी मस्ट. आखिर वो इनोवेटिव है इट मीन्स they will increase the production range as well as they will success to attract new customer also. Then fourth is maximum productivity. In business it is essential that best quality product should be produced to the optimum quantity at minimum cost. So this is a main motive of organization. कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बनाना. One can achieve success in a business only by optimum utilization of one's machine, raw material, labor, time and capital. तो मेन मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बनाना. तो लाइक कम रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ करना, कम लेबर का यूटिलाइज़ करना, कम रॉ मटेरियल का यूटिलाइज़ करना और उसके थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन को बनाना, उसको तैयार करना. सो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक. देन fifth is better marketing strategy. So better marketing strategies comes in a marketing sector. So in modern time better marketing strategy has become an important objective of business. With an elaborate and excellent marketing strategy it become possible to discover new customers and market and explore them. तो एक्सप्लोर करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाउ डेज वी ऑल नो हम क्या कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं. सो आई थिंक नाउ डेज एडवर्टीजमेंट इज़ द बेस्ट वे ऑफ टू अट्रैक्ट अ कस्टमर इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा जब वो एडवर्टीजमेंट देखेगा. इफ़ यू टॉक अबाउट टीवी एडवर्टीजमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट रेडियो एडवर्टीजमेंट, if we talk about paper advertisement, and if we talk about mobile advertisement or social media advertisement. So इसके थ्रू कस्टमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके अट्रैक्ट होता है. देन वो ट्राई करता है उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी लेने के लिए. नाउ डेज अभी जैसे हम जस्ट बात कर सकते हैं एंड लाइक मिंत्रा एंड सेल. तो मिंत्रा एंड सेल दे गिव एडवर्टीजमेंट इन टेलीविज़न, दे गिव एडवर्टीजमेंट इन सोशल मीडिया एंड दे गिव एडवर्टीजमेंट इन रेडियो ऑल्सो. सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि ताकि लोग सुने, लोग अट्रैक्ट हों और लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें और प्रोडक्ट को खरीदें. सो आई थिंक मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. आखिर गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी मार्केट में सेल आउट होगा और कस्टमर उससे ईजिली परचेज भी कर पाएगा. सो हियर द 5 points ऑफ economic objective, and then in my next class I will explain social objective and human objective.